Okay, students, last time we had studied about some of the parts of human skeleton, and after that we had seen where all these parts of this human skeleton are present in that. And after that, I had told you to draw the human skeleton in your notebook. Now today some points were left in the last class, so we are going to discuss those points. Okay, so firstly, let us talk about the backbone. Now we had discussed about the vertebral column, and I had told you that vertebral column is present at the back of the human being to provide support and for the bending of the back. Now see, backbones are is made up of very small bones, and those small bones are called vertebrae. Okay, means one bone which is forming the backbone is called vertebrae, and a lot of vertebrae are present there. How many vertebrae are there? There are 33 vertebrae which are forming the backbone. So you have to remember this number, that there are 33 vertebrae which are forming the backbone. And if backbone was made up of only one bone, will you be able to bend? If I tell you to touch your toe by bending you have to touch your toe. So which bone and which system of bones is responsible for the bending? Then the answer will be कौन सी bones आपकी responsible होती है back की bending के लिए? So those bones are the vertebrae. Vertebrae क्योंकि छोटे छोटे यहाँ पे देखो, the backbone is made up of a lot of bones, and these small bones are called vertebrae, like this. And there are 33 vertebrae. अब क्योंकि ये छोटे छोटे sections में ये bones हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, we can bend. इन सारी bones के बीच में क्या होते हैं, joints होते हैं. A lot of joints are there in all these bones. That is why we are able to bend our back. अपनी back को हम bend कर सकते हैं. For example, when we do the exercise or yoga, तो हम अपने toe को touch करने वाली exercise करते हैं. So how we are able to bend? Because of the presence of these vertebrae. इन वर्टिब्रे की प्रेजेंस की वजह से हम बेंड कर पाते हैं. अगर वर्टिब्रे नहीं होते तो क्या होता, वी विल नॉट बी एबल टू बेंड. अगर सिर्फ एक ही बोन से बनी होती पूरी बैकबोन. यस, व्हाट हैपेंड? नमन, आई हैव रेड योर मैसेज, और मैंने शुरू से ही फिर से बताया था ना आपको. बैक अबाउट द वर्टिब्रे आई हैड started from the starting, that backbone is made up of many bones which are called vertebrae. सी, अगर बैकबोन सिर्फ एक ही बोन से बनी होती, वन लॉन्ग बोन, तो क्या होता, व्हेन द पर्सन विल ट्राई टू बेंड, तो वो बेंड नहीं हो पाता. इंस्टेड ऑफ दैट ही कुड गेट एन इंजरी और हिज बोन कुड ब्रेक. उसकी जो एक बोन थी वो ब्रेक हो सकती थी. ठीक है, तो इसलिए वो छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइडेड होती है इस तरह से. दे हैव जॉइंट्स इन बिटवीन, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द जॉइंट्स the person's backbone is able to bend. So this you have to remember. Next we have the pelvic bones. अब pelvic bones कौन सी होती हैं? These bones enclose the portion of our body below the stomach. Stomach के नीचे वाला जो portion होता है, the portion which I have circled, you would be able to see that the portion which I have circled, this is called the pelvic bones. इन bones को pelvic bones होती हैं बोलते हैं, और ये वही part है जिसके ऊपर आप बैठते हैं. When you are sitting on the table or this chair, जब आप चेयर में बैठते हैं तो क्या होता है, आप कौन से पार्ट के ऊपर बैठे हुए हैं? यू आर सिटिंग ऑन योर pelvic bones. आप अपने pelvic bones के ऊपर बैठे हुए हैं. ठीक है, so this part below the stomach which I have circled, this part is formed by the bones which are called pelvic bones. Now about the skeleton which we had seen,
वी हैव टॉक्ड अबाउट बोन्स टिल नाउ, अभी तक हमने सिर्फ बोन्स के बारे में बात किया है, बट देर आर सम अदर थिंग्स ऑल्सो इन आवर बॉडी विच आर नॉट बोन्स बट दे आर हार्ड। वो बोन्स तो नहीं होती हैं बट तब भी वो हार्ड होती है। ओके, सो दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड कार्टिलेज। ठीक है, ये बोन्स के बराबर तो हार्ड नहीं होती, दीज आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स, बट दे कैन बी बेंड। Just you have to do one thing. Okay, wait. Okay, just firstly do one thing. आप अपने ईयर को टच करिए। ईयर का जो नीचे वाला पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड ईयर लोब। टच योर ईयर लोब वेयर द गर्ल्स हैव द पियर्सिंग। जहाँ पे गर्ल्स अपने ईयर में पियर्स कराती हैं, मीन्स कान छिदवाती हैं, दे वियर द इयररिंग्स। तो उस वाले पार्ट को टच करो। दैट इज सॉफ्ट, राइट? सॉफ्ट है ना वो वाला पार्ट? दैट पार्ट इज कॉल्ड ईयर लोब। उस पार्ट को हम बोलते, यस, उस पार्ट को हम ईयर लोब बोलते हैं। एंड दैट पार्ट इज प्योरली मेड अप ऑफ मसल्स। वो सिर्फ मसल्स और टिश्यूज से बना होता है। ठीक है, वो टिश्यूज से बना होता है, उसमें कोई भी बोन नहीं होती। आप उसको जैसे चाहो वैसे क्या कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो और स्ट्रेच कर सकते हो, बेंड कर सकते हो। गॉट दैट? टिश्यूज आर फॉर्म्ड ऑफ अ लॉट ऑफ सेल्स। जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती हैं तो हमारा टिश्यू बनता है। ठीक है, सेल्स क्या होती हैं? बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो बॉडी का जो बिल्डिंग यूनिट होता है, उसे सेल बोलते हैं। आप अपनी हायर क्लासेस में सेल्स के बारे में और डीपली पढ़ोगे। ठीक है, तो बहुत सारी सेल्स से मिलके टिश्यूज बनते हैं और बहुत सारे टिश्यूज से मिलके एक ऑर्गन बनता है। तो सी, ये जो हमारा नीचे वाला लोअर पार्ट ऑफ द ईयर, इट इज कॉल्ड ईयर लोब। उसको ईयर लोब बोलते हैं और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ऑन द अदर हैंड द अपर पार्ट ऑफ द ईयर, आप अपने अपर वाले पार्ट को टच करो, इट इज हार्ड इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द ईयर लोब। वो ईयर लोब से तो हार्ड है, बट उतना हार्ड नहीं है कि जितनी बोन्स होती है। तो दैट पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड कार्टिलेज। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, अब कार्टिलेज सिर्फ ईयर्स में ही नहीं होता है, और भी जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन द जॉइंट्स इन एल्बोज, नीज एंड एंकल्स। और भी पार्ट्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, बट ईयर्स आर द इजिएस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेज विच वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, जो हमें विजिबल है, क्योंकि बाकी तो इंटरनली प्रेजेंट है, वी कैन नॉट टच दैट और फील दैट, बट इन द ईयर वी कैन इजीली टच एंड फील दैट। So now you must have understood what the cartilage is. Cartilage is that part which is not as hard as the bones, but it is harder than the soft tissue. जो soft tissue है उससे ज़्यादा hard होता है। Okay, and where it is present, it is present in the ear, joints in elbows, knees and ankles. Now let us talk about the muscles. अब muscles के बारे में बात करते हैं. What are muscles? So muscles are the soft elastic tissues found in most animals. Almost all the animals are having the muscles and they help to produce force and motion. Force means जब when we need the strength to move any place, to move anything or to fight with anyone, so at that time muscles work. In the you can see that bodybuilders are producing their muscles. वो अपने muscles को strong बनाते हैं. Only then they are able to have a lot of strength. इसीलिए उनमें इतनी ज़्यादा strength होती है because their muscles are built up. उनके muscles क्या होते हैं? Built up होते हैं, and these are made up of some specific type of proteins. Muscles कुछ specific type of protein से बने होते हैं, and these are the elastic tissues. Elastic means होता है कि these can be stretched and contracted. These can be stretched and contracted. Now see, now you have to do an activity. Wherever you are sitting, just stretch your hand outwards. अपने hand को outwards stretch करो and अपने हैंड को आउटवर्ड स्ट्रेच करके आपको क्या करना है, दूसरे हैंड से अपने आर्म को होल्ड करना है। यू हैव टू ग्रैब योर आर्म फ्रॉम द अदर हैंड और दूसरे हैंड से पकड़ के अपने
फिस्ट बना लो, मीन्स राइट हैंड में आपको फिस्ट बना लेना है। फिस्ट मीन्स मुट्ठी, मुट्ठी बंद कर लो अपने राइट वाले हैंड में, और लेफ्ट हैंड से अपने राइट राइट वाले आर्म को क्या कर लो, पकड़ लो, ग्रैब कर लो। अब आप अपने हैंड को ऊपर की तरफ करोगे तो क्या होगा, आपको अपने राइट मसल्स में आप क्या करोगे, आपको कुछ चेंजेस फील होंगे। हो रहे नहीं हो रहे चेंजेस फील, आप ऊपर नीचे करोगे अपने राइट हैंड को तो कैन यू फील दैट, कैन यू फील दैट? Yes, we can feel that because the muscles are contracting and relaxing. जब हम अपने हाथ को ऊपर लाते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मीन्स सिकुड़ रहे हैं, और जब नीचे ले जा रहे हैं तो हमारे मसल्स क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। ओके, जब ऊपर ला रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं तो रिलैक्स हो रहे हैं। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मीन्स जब व्हेन दे कम नियर टू ईच अदर, व्हेन दे हैव टेंशन, जब हमारे मसल्स में when our muscles have tension, जब हमारे मसल्स में थोड़ी बहुत टेंशन क्रिएट हो जाती है, at that time they start contracting and the tension is, when the tension is gone, जब टेंशन चली जाती है तो our muscles get relaxed and relaxation is done, हमारी मसल्स में रिलैक्सेशन होता है। तो टू टाइप्स ऑफ थिंग्स हैपन इन द मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है जब मसल्स में टेंशन आपको फील होती है। मैंने अभी बताया आपको अपने हैंड्स के साथ क्या करना है।